Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. Now my dear students, this is for grade 9 and this is from the book of Beehive, chapter number 6 that we have started with the title My Childhood. Now this is an extract from the autobiography of late APJ Abdul Kalam from his Wings of Fire. We began the story of APJ Abdul Kalam from his birth. He was born in Rameshwaram. Okay, that's a town in Tamil Nadu. It is situated in the earlier called Madras, which is now Chennai. So we began reading about the story about his school and the friends he had who were Hindus, who were not Muslims. So now look at, this is a picture of him in the class. This is APJ Abdul Kalam sir. He wore a cap that showed that he was a Muslim. Okay, so this is a picture of him sitting in the class while he was in class 5th standard, and this is their science teacher. So let us see what the science teacher says. On the whole, a small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. Rigid का असल मतलब होता है strong, ठीक है, सख्त, but here we can also say कि बहुत strict थे, ठीक है. Segregation, that is separation or breaking down of different social groups. However, my science teacher Sivasu Brahmania Iyer, though an orthodox Brahmin, was with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. अब देखें रामेश्वरम में क्या था कि जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं वो स्ट्रिक्टली अपने अपने बने हुए थे, लेकिन जो साइंस टीचर थे सिवासु ब्रह्मण्य इयर, इनकी सोच अलग थी. ये अपनी हर कोशिश करते थे कि हर सोशल बैरियर, मतलब जो रुकावटें होती हैं, बैरियर्स एक तरह से जैसे हम दीवार खड़ी कर लेंगे ना कहने में कि दोस्तों के बीच में दीवार आ गई, सो ये कहने की बात होती है, एक रुकावट आ गई कि अलग अलग लोग अलग बैकग्राउंड से आसानी से मिल सकें, आसानी से आपस में बातचीत करें, वो ये चाहता था. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. So ये जो थे साइंस के टीचर, ये अक्सर कलाम से कहते थे, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक डेवलपमेंट आए, तुम अच्छे से, मतलब तुम्हारी सोच अच्छी हो, तुम ग्रो अच्छे से हो पॉजिटिवली, ताकि तुम जो शहरों के बड़े एजुकेटेड लोग हैं उनके साथ तुम मिलो, उनके लेवल पे आओ. ओके, अब देखें आगे क्या होता है. One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. अब जो साइंस टीचर थे वो एक दिन घर पे बुलाते हैं खाने पे, लेकिन उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ही जब हम सोचते हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हॉरिफाइड, एक डरावना आइडिया, एक हॉरिबल आइडिया दिमाग में आता है उसके कि एक मुसलमान लड़के को वो घर बुला रहे हैं खाने पे, वो भी उसके रिचुअली प्योर किचन पे. मतलब कि रिचुअली प्योर, ये एक मानना होता है, धार्मिक मानते हैं इसको कि घर बिल्कुल साफ़ है और बाहर की दूसरे धर्मों से बचा के रखते हैं, जैसे कि चप्पल लेके भी नहीं घुसेंगे और एक हिंदू के घर में एक मुसलमान नहीं बैठ सकता, इस तरह की सोच थी उनकी. She refused to serve me in her kitchen. यहाँ तक कि उसने किचन में खाने से मना कर दिया था. Sivasu Brahmania Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead he served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. अब जो साइंस टीचर थे उन्हें उनकी उस आदत पे कोई बुरा नहीं लगा, गुस्सा नहीं आया बिल्कुल भी. इंस्टेड उन्होंने खुद खाना परोसा और मेरे साइड में बैठे मेरे साथ खाने के लिए, मेरे बराबर में, beside means बराबर में. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. खैर उसकी जो वाइफ थी किचन के दरवाजे के पीछे से हमें देख रही थी, बिहाइंड मीन्स किसी चीज़ के पीछे, एंड मैं ये सोचा था कि पता नहीं उसने ऑब्जर्व किया था कि मैं किस तरह से चावल खाता हूँ या पानी पीता हूँ, या जहाँ मैंने खाना खाया वहाँ से फर्श साफ़ करता हूँ.
ठीक है. When I was leaving his house, Sivasubramania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. अब जब मैं जा रहा था तो वो मुझे दोबारा एक दावत देते हैं, इनवाइट करते हैं कि मैं उनके साथ डिनर करूं अगले वीकेंड पे. वीकेंड होते हैं जो हफ्ते के 2 एंड होते हैं. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई. जब साइंस टीचर ने ऑब्जर्व किया कि मैं झिझक रहा था, और मैं क्यों झिझक रहा था, क्योंकि उनकी वाइफ को पसंद नहीं था, तो वो मुझे क्या कहते हैं कि दुखी मत हो, डोंट बी अपसेट. और उन्होंने एक बहुत अच्छी बेहतरीन बात कही, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, जब आप कुछ बदलने की इच्छा रखते हो या फैसला करते हो कि मुझे ये सिस्टम बदलना है, ये तरीका बदलना है, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, ऐसी दिक्कतों का, ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. ठीक है. अब इस सब में मुश्किल क्या था कि उनकी वाइफ को पसंद नहीं था, और वो बदलना क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि सभी जितने भी सब लोग थे सोशल बैकग्राउंड्स के, सब आपस में मेल जोल रखें. तो अगर ये चेंज लानी थी तो प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी. ओके. When I visited his house the next week, Sivasubramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me with her own hands. अब देखें, जब अगले हफ्ते जाते हैं उनके घर, साइंस टीचर की वाइफ किचन में ले जाती है एंड खुद खाना परोसती है. ओके. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. So सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था और इंडिया की जो आज़ादी थी, बस एक तरह से उम्मीद थी कि अब होने वाली है, आज़ादी मिलने वाली है. इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी. गांधी जी ने कहा, मतलब एक बात कही कि इंडियंस, हिंदुस्तानी अपना हिंदुस्तान खुद बनाएंगे. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in रामानाथपुरम. ठीक है. तो अब क्या होता है, जब आज़ादी मिलने वाली होती है तो जो पूरा देश था, पूरी कंट्री जो थी, वो ऑप्टिमिस्ट हो रही थी. मतलब जब हम कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करने के लिए सोचते हैं, तो दैट मीन्स ऑप्टिमिज्म, एक पॉजिटिव सोच रखना. एंड अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है कि जो कभी पहले नहीं हुआ. ओके. सो उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये परमिशन लेते हैं अपने पापा से, अपने फादर से, कि इन्हें रामेश्वरम से हटना है, निकलना है, और जो हेड क्वार्टर्स है वहाँ पर पढ़ाई करनी है. ठीक है. वहाँ पर जाना है पढ़ने के लिए. अब देखें, ये एक फ़ोटो है, ये इमेज है, इसमें क्या है, ये सुब्रमण्य इयर है और ये उनकी वाइफ है जो उन्हें खुद बैठ के खाना परोस रही है. ठीक है. अपने किचन में खुद ही अपने हाथों से परोस रही है. ओके. So let's move on to the next para. He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. अब देखें, उन्होंने एक बात कही मुझसे, अबुल, उनका नाम लेके, I know you have to go away to grow. मुझे पता है कि तुम्हें अगर बड़ा मतलब ग्रोथ चाहिए, मतलब आगे कामयाब होना है, डेवलप होना है, उसके लिए तुम्हें दूर जाना पड़ेगा. तो ठीक है. क्या वो सीगल पक्षी उड़ के मतलब एक सीगल होता है, एक छोटी सी जो है पक्षी होती है, वो उड़ने से डरती है. ये एक और कहानी है, ये मैं फिर सुनाऊंगी आपको कभी. तो वो उड़ने से डरती थी, लेकिन फिर भी अकेली बिना घोंसले के वो उड़ के गई, उसके अंदर वो हौसला आया एंड वो उड़ी. ये खलील गिब्रान की एक कहानी थी. तो ये वो बताते इसलिए हैं क्योंकि जो अब्दुल कलाम की मदर थी, एपीजे अब्दुल कलाम की मदर, वो थोड़ा झिझक रही थी, वो भेजना नहीं चाह रही थी उन्हें दूर. तो फिर जो फादर हैं वो क्या बताते हैं, ये तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं. ठीक है. ये बच्चे जो हैं, ये जीवन के जो हैं बेटे और बेटियां हैं, और इनको अपना जीवन जीना है. ये तुम्हारे से आते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब तुम्हारे ज़रिए आते हैं इस दुनिया में, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं.
तुम इन्हें अपना प्रेम दो, अपनी फ़िक्र दो, अपनी सोच दो, सब कुछ दो, लेकिन जो तुम्हारी सोच है वो इनकी सोच नहीं हो सकती। सो एक मकाम, एक वक्त ऐसा आता है लाइफ में कि बच्चों को जाना पड़ता है माँ बाप से दूर अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। ये बात उनके फादर उन्हें अपनी जो है वाइफ को समझाते हैं। तो आप देखें कितनी पुरानी बात है बच्चों, तब हमारे ये जो पेरेंट्स थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें एक बहुत मतलब एक वो विजडम था उनमें, इंटेलिजेंस थी उनमें, बहुत अच्छी सोच रखते थे वो। देखिए कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं भेजते, नहीं हमें नहीं पढ़ाना, हम नहीं भेजेंगे दूर, लेकिन उनकी सोच देखें आप। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि अगर आपको डेवलप होना है लाइफ में तो आपको दूर जाना पड़ेगा ही, ठीक है। सो ये एपीजे अब्दुल कलाम की खुद ही लिखी हुई है, इसलिए हम इसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, इंस्पायरिंग भी थी, इसे काफ़ी सीखने को भी मिला है। आई होप you also enjoy the story. If you have any questions, please make sure you do ask me. Thank you.